कैन स्टार्ट। आइए हम लोग शुरू करेंगे और प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्ययन में। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर साजन कपाली जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। Father God Almighty, we give thanks to you in this time. And just God Almighty, we just got an opportunity to learn more about you, Jesus. And then we just especially pray for our brother Paul, who is going to teach us. And then we pray for all of our teams can listen very well as understand you more. So whatever you give us such a privilege and power and knowledge to do something for you, Lord, and whatever we learn in our life also we practically implement things to all our people to magnify your name. Thank you Jesus with us, just providing such an wonderful opportunity for us. Everything we keep in your hand, Lord Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Usually I want to start the class exactly at 8 o'clock so that I will have enough time to complete. और ठीक 8 बजे जो है मैं क्लास को शुरू करता हूं ताकि हमारे पास काफ़ी समय हो ताकि सारी बातों को पूर्ण कर सकें। According to the topic that we are discussing is to understand the book of Revelation and then Jesus' second coming. और जैसा कि विषय है हमारी किताब का कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना और यीशु मसीह के दूसरे आगमन को। We need to recall back chapter 1 and chapter 2. और एक बार फिर से हम पहला और दूसरा अध्याय को जो है दोहराएंगे। Chapter 1 is the prophecy about the 70 week of Daniel. और जो पहला अध्याय एक जो है और वो दानियल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी के बारे में है। Chapter 2 is about the 7,000 years plan of God for human. और जो अध्याय 2 है वो मनुष्य के लिए परमेश्वर की 7,000 वर्ष की योजना के विषय में है। So with these two chapters in mind, we can understand this tribulation period topic which is in Revelation chapter 6 to 19. और इन दो अध्यायों को ध्यान में रख हम जो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से लेकर के 19 अर्थात महाक्लेश के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। As we have studied before, we have completed about the 7 churches where we discussed regarding Revelation chapter 1, 2 and 3. और अब तक जो हमने अध्ययन किया है उसमें जो है हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 1, 2, 3 तक जो है हम अध्ययन कर चुके हैं। We have also touched regarding chapter 4 and 5 where John was taken up and he saw the throne of God in heaven. और उसके पश्चात हमने चौथे अध्याय को भी थोड़ा देखा है जहां पर यूहन्ना ऊपर उठा लिया जाता है और जो कलीसिया को प्रदर्शित करता है। In Revelation chapter 5, we see an incident from Revelation chapter 5 verse 1 to 5 that the Lamb of God, that is Jesus, taking the scroll from the hand of God and opening its seals. और उसके बाद हम 5वें अध्याय में देखते हैं 1 से लेकर के 5 तक प्रभु यीशु मसीह जो है उस चरम पत्र को, उस पुस्तक को परमेश्वर के हाथ से ले लेता है, स्वर्गदूत के हाथ से ले लेता है और एक एक करके उसकी जो मोहर होती है मोहरों को खोलना शुरू कर देता है। When he opened the seal, the opening of the seal starts from Revelation chapter 6. और जब मोहरों का तोड़ना या खोलना जो हम देखते हैं वो अध्याय 6 से, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से हम देखते हैं। And we will see Revelation chapter 6 where 4 horses in the first 4 seal. और उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में देखते हैं जहाँ पर 4 घोड़े हैं। And so on and so forth till the 7th seal till Revelation chapter 19. और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और देखते चले जाते हैं प्रकाशित वाक्य 19 तक जो है वे मोहरों का खुलना और तोड़ना। So that is the introduction and today I'm going to go in detail a little bit before I go on to the tribulation, great tribulation period. महाक्लेश में जाने से पूर्व हम थोड़ा सा वर्णनात्मक तौर से उन बातों को देखेंगे। So Daniel 70 weeks, we have already seen that Exodus
decree and 7 weeks to rebuild the Jerusalem. और हम देखते हैं कि शुरुआत में जो है राजा अक्षयतृतीय की आज्ञा के निकलने से लेकर के यरूशलेम के दीवार के बनाए जाने तक जो है वो 49 जो है साल गुजरे, And 62 7 सप्ताह। weeks from the rebuild of the Jerusalem to the Messiah being crucified. और उसके बाद 62 सप्ताह जो है मंदिर के वो दीवार के बनाए जाने से लेकर के मसीहा के काटे जाने तक गुजरे। So 7 and 62 you add up, it's 69 weeks. और जब 62 सप्ताह और 7 सप्ताह को आप मिलाएंगे तो ये 69 सप्ताह बन जाएंगे। But that balance 1 week or 7 years has not taken place. लेकिन जो बाकी का बचा हुआ एक साथ या फिर एक सप्ताह वो अभी तक जो है घटित नहीं हुआ है। It is actually carried forward to the Great Tribulation period, which is here, if you can see in the diagram. और असल में जो है इस एक हफ्ते को एक सप्ताह को निकाल करके यहाँ पर डाल दिया गया ये 7 साल का समय जो कि महाक्लेश कहलाता है, इसको बाद में डाला गया है कलीसिया युग के बाद। When the Messiah is crucified, that means Jesus is crucified, till Jesus, till our rapture, और जब मसीहा काटा गया तब से लेकर के जब मसीहा के वापस बादलों पर आने के समय तक this age is called the church age or the grace period. ये जो युग कहलाता है वो अनुग्रह का युग कहलाता है और इसे कलीसिया युग भी कहते हैं। After the church is raptured, there will be a 7 years of tribulation period where it is the 70th week of Daniel or the Great Tribulation. और जैसे ही कलीसिया ऊपर उठा ली जाएगी उसके बाद दानियल का 70वां सप्ताह शुरू हो जाएगा, इसे महाक्लेश भी कहते हैं और ये दानियल के लोगों के लिए पीड़ा का समय भी कहलाता है। This is what we are going to discuss today, what is going to happen during this 7 years period. और आज हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे कि इस समय अंतराल में इस भाग में क्या होने वाला है। During the church age where we are living, what is it written in the Bible? It is actually Revelation chapter 2 and 3. It is about the 7 churches. और जो कुछ हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 में देखते हैं और जो ये युग जिसमें हम जी रहे हैं जिसको कलीसिया का युग कहते हैं, असल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 2-3 है जिसमें यीशु मसीह कलीसिया से बोलते और बातचीत करते और उन्हें बताते हैं। After the church era, only the Great Tribulation will begin. और कलीसिया युग के समाप्त होने के पश्चात ही महाक्लेश युग की शुरुआत होगी। We have seen in chapter 3 where we see before the Great Tribulation is rapture, and after the Great Tribulation is the glorious coming of Jesus Christ together with the saints in heaven. और अध्याय 3 में हमने देखा था कि जो इस महाक्लेश के शुरू होने से पहले प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आगमन है और जैसे ही ये 7 साल का महाक्लेश समाप्त हो जाएगा वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर अपने संतों समेत उतरेंगे। 7 years of tribulation in this earth and 7 years of wedding feast when we go up with Jesus in heaven. और ये 7 साल जो है पृथ्वी पर महाक्लेश का समय होगा, परंतु जो कलीसिया उठा ली जाएगी उनके लिए 7 साल तक जो है एक बड़ा भोज होगा स्वर्ग के अंदर। And after the wedding supper, after the wedding feast, we will come down at the end of the tribulation and Jesus will set up his kingdom for 1000 years in this earth. जब भोज का समय समाप्त हो जाएगा 7 सालों में 7 कालों में, उसके बाद जो है पृथ्वी पर भी जो 7 वर्ष का महाक्लेश है वो भी समाप्त होगा और तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है महिमामय आगमन में नीचे उतरेंगे। So this was और 1000 साल का शासन यीशु मसीह का पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा। This was what we learned about the chapter 2 where 7000 years plan for mankind. और ये अध्याय 2 में हमने सीखा था जहाँ पर परमेश्वर की मनुष्य के लिए 7000 वर्ष की योजना बताई गई थी, हमने बताई थी। If you see God's plan from Adam to Abraham is 2000 years. और अगर आप परमेश्वर की योजना के अंतर्गत देखेंगे आदम से लेकर के अब्राहम तक 2000 वर्ष गुजरे। Abraham to the death of Jesus Christ is 2000 years. और अब्राहम से लेकर के यीशु मसीह की मृत्यु तक 2000 वर्ष गुजरे। But there is a balance of 1 year God promised to the Israelite, which is the tribulation period here. और एक जो है 7 यानी कि 7 वर्ष का जो समय है
उन दानियल के 70 सप्ताहों में से बाहर निकाला गया है और इसको जो है महाक्लेश का समय भी कहते हैं। And the death of Jesus to the rapture of the church is also about 2000 years. और यीशु मसीह की मृत्यु से लेकर के जब प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आगमन होगा तब तक 2000 वर्ष के गुजरने का समय है। And after the 7 years of tribulation, it will be the millennium rule of Jesus Christ at 1000 years. और 7 साल के महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी के ऊपर 1000 वर्ष का शासन स्थापित होना है। Basically, we have completed most of the thing, but today we are going to focus on the great tribulation of in Revelation chapter 6 to Revelation chapter 19. और ज़्यादातर बातों को हमने कंप्लीट कर दिया है, काफ़ी जो है भाग को समाप्त कर दिया है, परंतु जो हम 7 साल का महाक्लेश देखते हैं वो अध्याय प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से लेकर के 19 में इसका जिक्र पाते हैं। Okay, here we are going to see in Daniel chapter 12 verse 9 and 12 verse 4. और दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 12 9 और 12 4 में देखते हैं God gave a lot of prophecy to Daniel, including the 70 week of Daniel और prophecy. परमेश्वर ने दानियल को मिलाकर के जो है इस महाक्लेश के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। So God, the angel who saw Daniel also said this word in Daniel chapter 12. Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. और जो स्वर्गदूत दानियल को ये बातें बता रहा और सिखा रहा था वो अंत में इस प्रकार से कहने लगा, दानियल अपने रास्ते चला जा क्योंकि ये जो बातें हैं वो अंत समय तक के लिए मोहर करके बंद की गई हैं। Now if you see, when God gave Daniel a prophecy, he himself is now asking Daniel to close up and seal it. और वह व्यक्ति जो दानियल को इन सारी बातों के बारे में बता रहा था, सिखा रहा था कि क्या क्या होने वाला है, इन बातों के विषय में स्वयं वो दानियल से कहता है कि इन पर मोहर करके बंद कर दे। It is just like Daniel wrote up all the prophecies inside a book, and then God is telling him to close and then tie something and seal it. और ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे दानियल ने एक किताब के अंदर सब कुछ लिख दिया और लिखने के बाद उस किताब को बंद कर दिया और चारों तरफ से उसे रस्सियों से बांध करके उसके ऊपर मोहर लगा दी। And God says that many shall run to and fro and knowledge shall increase. और बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ दौड़ेंगे, भागेंगे और जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। In Daniel chapter 12 verse 9, God himself close up and seal it. और 9वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं इसको जो है मोहर लगा करके बंद कर दिया। Now you please tell me, if God close and seal, can anybody open it? और अब आप मुझे ये बताइए कि अगर परमेश्वर ही मोहर लगा के बंद कर दे तो कौन इसे खोल सकता है? You have to answer that question. और इस सवाल का जवाब दें। If the answer is yes, then you are wrong. और अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप गलत हैं। If the answer is no, then you are right. और अगर आपका जवाब ना में है तो आप ठीक हैं। So if God close and seal, nobody can open it. और अगर परमेश्वर ही बंद कर दे तो उसे कोई भी खोल नहीं सकता। And that is why you can see in Revelation chapter 5 verse 1 to 5, you can see God holding a scroll with 7 seals. और इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 5 1 से लेकर के 5 तक आप देखते हैं कि परमेश्वर ने उस जो है पुस्तक को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर 7 मोहरें होकर के बंद की हुई हैं। So what was sealed in, what was closed up in Daniel is revealed in Revelation, but not the full detail. और जो कुछ दानियल नबी की पुस्तक के अंदर बंद किया गया था वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 5 1 में जो है खोला जा रहा है, लेकिन सब कुछ एकदम से नहीं। The seal matter was still held by God. और जो सील होती है, जो मोहर होती है, उसका मतलब होता है कि ये अभी भी परमेश्वर के हाथ में है। Remember this. इस बात को याद रखें। In the entire Bible, there is only one पूरी- place that
God closed, and there is only one place that God opened what has been closed. और पूरी बाइबल के अंदर इस बात को स्मरण रखें कि एक ही स्थान है जहाँ पर बाइबल ये बताती है कि बंद कर दिया गया, और एक ही स्थान है जहाँ पर बाइबल ये बताती है कि उसे खोल दिया गया। There is one place that God sealed, and there is one place only in the Bible that God unsealed it. और एक ही स्थान है जहाँ पर बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने उसको मोहर करके बंद कर दिया, और परमेश्वर ने उसे मोहर को खोल दिया। In Revelation chapter 5 verse 1 to 5, a mighty angel came and told John that no one in heaven, no one in earth or under the sea is able to take the scroll from God's hand and to open and unseal it. और एक बलवंत स्वर्गदूत उड़ता हुआ आया और आकर के जो है यूहन्ना से बातें करने लगा और कहने लगा कि ना तो स्वर्ग में और ना ही पृथ्वी पर और ना ही पृथ्वी के भीतर या निचले स्थानों में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो इस पुस्तक के ऊपर दृष्टि डाले या इसकी मोहरों को खोल सके। To that John wept, John cried. और तब यूहन्ना ये सुन करके रोने लगा। And then one of the elder came and said to John, do not weep, for the Lion of Judah, the Lamb which was slain, is worthy to take the scroll from God's hand to unseal it. और तब एक और स्वर्गदूत आया और उसने आकर के यूहन्ना से कहा, भयभीत ना हो, परंतु स्मरण रख कि यहूदा के गोत्र का सिंह अर्थात यीशु मसीह जो है इस मोहरों को खोलने के योग्य ठहरा है और इनके ऊपर दृष्टि डालने के योग्य ठहरा है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको एक एक करके खोलना शुरू करते हैं। When Jesus took the scroll from God's hand, there was a great worship, and you can see that the people who have been redeemed, the church which is redeemed, is there to worship God together with the 24 elders and the 4 creatures which is in front, angels which is in front of God. और आप देखने पाएंगे कि जब वहाँ पर परमेश्वर के सम्मुख प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होते हैं इस पुस्तक को खोलने के लिए, तब स्वर्गदूतों के साथ और जो है 24 प्राचीनों के साथ कलीसिया जो छुड़ाए हुए लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और एक गीत गा करके प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति और प्रशंसा करते हैं। In the entire Bible, if something is sealed, is to stamp with a private mark in the interest of keeping something secret or protecting and preserving the sealed object or scroll. और यदि हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल के मुताबिक जो है कोई भी चीज़ अगर मोहर लगा करके बंद की गई है तो इसका मतलब है कि ये गुप्त वस्तु है, गुप्त चीज़ है, और इस उद्देश्य के साथ बंद की गई है कि उसको सुरक्षित रखा जाए, लंबे समय तक बचा करके रखा जाए, और वो किसी प्रकार की कोई पुस्तक या कोई और जो है स्क्रॉल या प्रपत्र हो सकते हैं। So a seal denotes security as well as secrecy or concealment. You can read that in Esther 8 to 10, Matthew 27 verse 66. और जो मोहर है एक प्रकार से सुरक्षा को दर्शाती है और जिन लोगों ने उसको मोहर किया है उनकी सहमति को भी प्रकट करती है कि उनकी सहमति से ये चीज़ जो है वो बंद करके रखी गई है। इसके बारे में आप एस्तर की पुस्तक अध्याय 8 से लेकर के 10, मत्ती 27 और उसकी 66 आयत को भी देख सकते हैं। You might ask me why God sealed it and opened it in the book of Revelation. और हो सकता है कि आप सवाल करें कि प्रभु परमेश्वर ने क्यों ये बंद कर दी और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में खोल क्यों दी। The answer in Daniel chapter 12, why God sealed it? Because it is the end time event. और क्यों परमेश्वर ने इसके ऊपर मोहर दी, इसका जवाब हमें दानियेल नबी की पुस्तक अध्याय 12 में मिलता है, क्योंकि ये बातें अंत समय तक के लिए हैं, अंत समय की बातें हैं, इसलिए इस पर मोहर कर दी गई। So Daniel during his time, he doesn't need that. और उस समय जब दानियल था, दानियल के समय में उसे ये जो बातें लिखवाई गई थी तब उस समय के लिए नहीं थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। So it was God's plan to seal it, the end times events during Daniel's time of the event of during the 70 week. Sorry, it was God's plan to seal it, the end time event, but during the 70th week, the last week, it was only unsealed or via John's vision after the church was taken up. और
हम देखते हैं कि इसे परमेश्वर ने मोहर लगा करके बंद कर दिया गया था, परंतु जो 17वां जो सप्ताह है अंतिम, उसमें जो है इसको खोला जा रहा है, क्योंकि उस समय की शुरुआत इस जो है बात लिखी हुई बातों के साथ शुरू हो चुकी हैं। तो इसीलिए जो है इसको जो है खोला जाता है और एक-एक करके प्रभु यीशु मसीह इन मोहरों को तोड़ना या खोलना शुरू कर देते हैं। Here itself you can see it was sealed during Daniel's time, it was revealed during John's time. So you can see that church is not church is not involved when it is already in heaven. Church और representing आप John is already देखते in हैं heaven. कि दानियल के समय में ये बंद की गई और जो है यूहन्ना के टाइम में जो है इसको खोला जा रहा है। सो हम इस बात को देखते हैं, पाते हैं कि कलीसिया जो है इसमें सम्मिलित नहीं है और कलीसिया जो है वो इससे होकर के नहीं जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है कलीसिया को जो प्रदर्शित करता है या प्रकट करता है, वो स्वर्ग में पहुंच चुका है। Okay, the great tribulation or the 7 years period is the 70th week of Daniel. I've been keep reminding or saying this word many times. और इस बात को मैं बार बार आपको याद दिलवा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि दानियल का 17वां सप्ताह ही असल में 7 साल का महाक्लेश है। So don't confuse with the word tribulation and great tribulation. इसलिए शब्द क्लेश और महाक्लेश दोनों ही बाइबल के अंदर आए हैं, तो दोनों में आप जो है संदेह में ना पड़े। महाक्लेश बिल्कुल अलग है जो दानियल का 70वां सप्ताह है, क्लेश नॉर्मल साधारण बात है। So many Christians are confused with John chapter 16 verse 33 regarding the word tribulation. और बहुत सारे लोग जो है यूहन्ना 16 में पढ़ कर के जो है संदेह में पड़ जाते हैं, जहाँ पर क्लेश का जिक्र किया गया है। And the word great tribulation that Jesus mentioned in Matthew chapter 24 verse 21. और महाक्लेश जो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 में जिक्र किया गया है, उसके 21 में उन बातों को मिला देते हैं या एक ही कर देते हैं कई दफा। These two words are the one which many Christians are saying it's the same. और ये जो दो बातें हैं, इनके बारे में बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं कि ये बातें एक ही बात है। They are telling that even the Christians will go through the great tribulation. और वे इस प्रकार से भी कहते हैं कि यहाँ तक कि मसीह लोग भी महाक्लेश से होकर के गुजरेंगे। But listen to the word what Jesus say and what John Jesus say. Listen to the word what Jesus और say. उस शब्द को सुने जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। Matthew 24 he was talking about the end time. और प्रभु यीशु मसीह 24 मत्ती 24 के अंदर जो है अंत समय की बात बोल रहे हैं। So he said, Jesus said, for then there will be a great tribulation. Watch for the word great tribulation, such as not been since the beginning of the world until this time. No, nor ever shall be. और इस प्रकार से वे कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि एक बड़ा महाक्लेश होगा, ऐसा महाक्लेश जो न तो संसार की उत्पत्ति के समय से लेकर के अब तक नहीं हुआ और न इसके बाद फिर कभी होगा। The great tribulation is a very terrible time which God is going to pour out his wrath or judgment upon this earth. और जो महाक्लेश का समय है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का समय होगा, जहाँ पर परमेश्वर अपने क्रोध के कटोरों को पृथ्वी के ऊपर उंडेलना शुरू करेगा। And Jesus said it has never happened before and it has not yet happened, but once it happened, that's it. It will be a very terrible time. और वो कहते हैं कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के अब तक ऐसा महाक्लेश हुआ नहीं है और न इसके बाद होगा, इसके बाद भी नहीं होने वाला। लेकिन जब ये होगा तो बस ये एक दफ़ा ही होगा, लेकिन ये बहुत ही प्रचंड होगा। So just imagine and see, has there been a time of a great tribulation which many people say has already happened? और आप थोड़ा सा इतिहास में नज़र उठा करके देखें, जहाँ पर लोग कहते हैं कि ये महाक्लेश का समय तो गुजर चुका, क्या कभी ऐसा इतिहास में हुआ है जो इतना प्रचंड हो? If what they say has already happened or happening, then after this it shouldn't happen anymore great like this. और अगर ये हो चुका होता तो एक दिमाग लगाने वाली बात है
कि अगर ये हो चुका होता तो फिर अब जो है नहीं होता, यानी कि उन समस्याओं को हम अब नहीं देखते। So this thing has not happened. तो इसका मतलब ये है, अर्थ ये है कि ये अभी तक चीज़ हुई नहीं है। But in John 16:33, Jesus said, "This thing I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, not great tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world." परंतु प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 16 उसकी 33 में कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है और मुझ में तुम शांति पाओगे, परंतु संसार में तुम्हें क्लेश होता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि भयभीत ना हो, मैंने संसार को जीत लिया है। As I've told you earlier, the great tribulation is the 7 years to punish unbelievers for their sin and the rejection of Christ, and to save the remnant of Israel by God giving them a new heart. और ये जो महाक्लेश है पृथ्वी के ऊपर क्यों होने वाला है, इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहली बात यह है कि जो अविश्वासी हैं उनको दंडित करना, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। दूसरी बात है इज़राइल के यीशु को नकारने की वजह से ये दंड उनके ऊपर आया है। और तीसरी बात है इज़राइल के बची हुई जो वंशज है, जो मुख्य हैं, उनको छुड़ौती देना। ये 3 बातों का मुख्य कारण है इस महाक्लेश का। When non-believers who hurt or persecute a Christian like you and me, और जब अविश्वासी मुझे और आपको जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सताते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, sometimes we pray to God and tell God, when are you going to revenge for us? और कभी-कभी हम परमेश्वर से इस प्रकार से कहते हैं, प्रभु तू हमारा बदला कब लेगा? And the Bible say revenge is of God. We cannot revenge people. और तब बाइबल कहती है कि बदला लेना मेरा काम है, ये बदला लेने का काम हमारा नहीं है, मनुष्य का नहीं है। Whenever the disciples or we face suffering and persecution for the sake of Christ, और जब कभी हम मसीह यीशु के लिए दुख उठाते अपने जीवन के अंदर, या चेले जो थे जब उन्होंने दुख उठाया, Jesus said that we are a blessed people because great is the great is the reward that He has kept for us. और तब यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं, क्योंकि उनका प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। But when is God going to take revenge against those people who are persecuting us, and when we go and share the gospel, these people laughing at us or doesn't believe at us? लेकिन परमेश्वर उनका बदला कब लेगा जिन्होंने हमारा मजाक बनाया जब हम सुसमाचार लेकर के गए, या उन्होंने हमें सताया जब हम सुसमाचार बताने गए, तंग किया, परेशान किया। तो इन बातों का बदला परमेश्वर आखिरकार कब लेने वाला है? So God has kept a timing of the 7 years period. During that time God will punish them. तो उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने 7 साल का एक महाक्लेश रखा है। इस दौरान प्रभु परमेश्वर जो है उन तमाम अविश्वासियों को, जिन्होंने कलीसिया के लोगों को, दासों संतों को सताया, उनको जो है वो दंडित करेगा। And God will also save back the Israelites by giving them a new heart, because the 70th week of Daniel belongs to Israelites people. क्योंकि जो दानियल का 70वां सप्ताह है वो इज़राइल के विषय में भविष्यवाणी है, इसलिए परमेश्वर अपने प्रेम को इज़राइल के ऊपर प्रकट करेगा इन दिनों में, और बचे हुए जो है उसको भाग को परमेश्वर इज़राइल के बचाएगा। It is mentioned over 50 times in the Old Testament about this great tribulation period. और 50 दफ़ा, कम से कम 50 दफ़ा जो है पुराने नियम के अंदर इस महाक्लेश के बारे में प्रकट किया गया है। The verses are the day of the Lord, और जो आयतें हैं वो इस प्रकार से कहती हैं कि परमेश्वर का दिन, परमेश्वर के प्रकोप का दिन। trouble or tribulation. You can see the verses later when I give you the slides. और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लेश या जो है क्या नाम है, क्लेशों के बारे में आप बाइबल में देख सकते हैं। But Jesus mentioned it as a great tribulation, referring to more intense second half of the 7 years period. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसे जो है महाक्लेश कह करके पुकारते हैं, क्योंकि 3.5 साल के उपरांत जो क्लेश है वो महाक्लेश में तब्दील हो जाएगा। It says the time or day of trouble.
और इसे जो है समस्या का दिन या जो है मुसीबत की घड़ी भी कहते हैं। Jeremiah 37, it says that the time of Jacob's trouble और यिर्मयाह 33 जो है वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि ये याकूब की समस्या की घड़ी है। I have the list of this thing which is mentioned, but it is in और all the case it is talking about the Israel nation and not the church. और मेरे पास ये पूरी सूची है और आयतों से भरी हुई है जहाँ पर ये बातें का जिक्र किया गया है, परंतु ये सारी जगह पर इज़राइल के दुख और क्लेश के बारे में बताया गया है। ये कलीसिया से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। You might be asking, what is the purpose of the tribulation, great tribulation period, or the 70th week of Daniel? और हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल हो कि इस महाक्लेश का क्या उद्देश्य है आखिरकार, या परमेश्वर इज़राइल के साथ ऐसा क्यों करना चाहता है। It is written in the prophecy itself. ये भविष्यवाणी के अंदर ही स्वयं अपने आप में लिखा हुआ है। The main purpose written in Daniel 9:24, 70 weeks are determined for your people and your holy city, and the 7 things: to finish transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquities, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. और दानियल 9:24 के अंदर ही जो है इसका जवाब लिखा गया है कि ये जो है 70 सप्ताह का समय तेरे लोगों के लिए ठहराया गया है और पवित्र नगर के लिए, ताकि अपराधों का होना समाप्त हो और उसके बाद हमेशा की धार्मिकता स्थापित की जाए और पापों का अंत हो और जो है तमाम प्रकार की बुराई की जो है समाप्ति होने पाए और हमेशा की धार्मिकता स्थापित करके जो दर्शन की बात है उस पर मोहर कर दी जाए और महापवित्र का अभिषेक किया जाए। Okay, I want you to understand this very clearly because some of them are confused on this matter. और मैं इस बात को एकदम साफ और स्पष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि आप में से कुछ जो है इस विषय में बड़े ही संदेह में पड़े रहते हैं। You see, many preachers say that to finish transgression, to make an end to sin, to make reconciliation for iniquities, to bring in everlasting righteousness, Jesus has already did it on the cross 2000 years ago. और जब हम बात करते हैं कि अपराधों का होना समाप्त हो, पापों का अंत हो या फिर जो है क्या नाम है मेल मिलाप की जो है वो शुरुआत हो, इन बातों के बारे में जब बात करते हैं तो बहुत सारे प्रचारक इस प्रकार से इसका बखान करते हैं कि क्रूस के ऊपर ये काम प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। If Jesus did it, but that prophecy has not been fulfilled yet, और अगर यीशु मसीह ने इस कार्य को क्रूस के ऊपर कर दिया होता तो हम बताएं कि अभी तक भी ये जो भविष्यवाणी लिखी है दानियल में ये पूरी नहीं हुई है। why do I say that? और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? We all believe that Jesus died on the cross for the sin of the whole world. और हम सब ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर सभी जगत के पापियों के लिए मारा गया। Excuse me. Those who believe Jesus, their sins are forgiven and washed away. और जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पाप माफ हुए हैं और उनके पाप धोए भी गए हैं। Even though Jesus died for the whole world, but it did not make an end of sin, transgression and iniquities. और हालांकि प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के पापों के लिए मारा गया तो भी जो है उस अपराधों का होना समाप्त नहीं हुआ और न ही पापों का अंत हुआ और न ही जो है मेल मिलाप के लिए जो है धार्मिकता का स्थापन हुआ। You see, 70 weeks are determined for your people, which is Israel, and your holy city, which is Jerusalem. और तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह का समय ठहराया गया है, यानी कि इज़राइल जो इज़राइली है और तेरे पवित्र नगर के लिए भी जो कि यरूशलेम है। Jesus died 2000 years ago, but now can you और tell me that the Israelite people never do sin? और यीशु मसीह 2000 साल पहले मारे जा चुके हैं, लेकिन आप मुझे बताइए क्या इज़राइली अब पाप नहीं करते हैं? They never transgress the law of God
or the law of क्या वे Moses? परमेश्वर के वचन का उल्लंघन नहीं करते हैं? They never do iniquities. क्या वे कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करते, उसे तोड़ते नहीं हैं, So they are now having everlasting righteousness. ताकि उनके पास युगान युग की धार्मिकता का स्थापन हो? No. Jesus did it for the whole world, but yet the people are still transgression. They are doing sin, they are having iniquities, and they are not having a everlasting righteousness. और हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को कलवरी क्रूस पर किया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग जो है अपने अपराधों को छोड़ते नहीं हैं, त्यागते नहीं हैं, और जो है हमेशा की धार्मिकता का स्थापन अभी जो है रह गया है। सो कलवरी क्रूस के ऊपर जो कार्य कर दिया, ये पूरे संसार की छुड़ौती के लिए था, लेकिन इज़राइल के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये काम अभी बाकी रह गया है। To make an end of sins means there is no more sins. और जब हम बोलते हैं कि पापों का अंत हो, इसका मतलब है Can you आगे tell को me पाप that नहीं there are रहेंगे। no more sins for the Israelite people? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब इज़राइल की तरफ पाप नहीं होता या संसार में पाप नहीं होता? Still everybody is sinning. Even the Christians are sinning. और अभी भी लोग पाप और अपराध करते हैं, यहाँ तक कि मसीह लोग भी पाप और अपराधों में अपना जीवन जी रहे हैं। So these things have not been completed yet, even though Jesus has did it. और हालांकि यीशु मसीह ने काम किया, लेकिन फिर भी अभी तक ये बात जो यहाँ लिखी है वो पूरी नहीं हुई है। To seal up vision and to seal up prophecy still haven't finished for the Israelite. और इज़राइलियों के लिए दर्शन की बात पर मोहर और भविष्यवाणी की बात पर मोहर, ये अभी बाकी रह गया है। There are still many visions for the Israelite people and prophecy for the Israelite people which has to take place. इज़राइल जाति के लिए बहुत सारी दर्शन, बहुत सारे स्वप्न बताए गए हैं और उनका भी पूरा होना बाकी है, जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जब तक वे पूरे ना हो लें तब तक ये काम नहीं होगा। So basically this prophecy of the 7 things has not been completed yet. It partially done, but it will be completed at the end of the 7 years of great tribulation period. सो दानियल की ये जो 7 बातें, 6 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन बातों का अभी तक जो है पूरी रीति से पूर्णत बखान नहीं आया है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को कलवरी क्रूस के ऊपर कर दिया है, लेकिन ये जो बातें हैं ये अभी एक प्रकार की प्रक्रिया में चल रही हैं, और ये जैसा कि समय ठहराया है, समय के मुताबिक अपने ही समय पर पूरी होंगी। Oh, number 7, to anoint the most holy one is another one, which is not yet done yet. और जो 7वीं बात है वो परम पवित्र का अभिषेक करना, ये अभी बाकी रह गया है। To anoint the most holy one is referring to more of Jesus Christ rather than the temple. और ये मंदिर से कहीं ज़्यादा जो है परम पवित्र का अभिषेक करना यीशु मसीह के बारे में दर्शाता है। Jesus was not anointed when he was in his first coming. और यीशु मसीह का अभिषेक नहीं किया गया जब वो अपने पहले आगमन में पृथ्वी पर बालक होकर के आया। Nobody anoint him with the oil on his head or something like that. Some people refer to the woman who anoint her feet. That's not true. That anointing is for Jesus' burial. और किसी भी व्यक्ति ने आकर के यीशु मसीह के ऊपर वो अभिषेक का तेल नहीं उंडेला, तो उसका अभिषेक जो है होना अभी बाकी है। परंतु एक दो जगह पर हम देखते हैं कि एक स्त्री ने आकर के यीशु मसीह के ऊपर इत्र को जो है उंडेल दिया, लेकिन वो यीशु मसीह के गाड़े जाने के लिए था, ना कि राजा होने के लिए। The book of Zechariah chapter 14, it says that Jesus will be, the Messiah will be anointed, and Revelation chapter 19, it speaks about Jesus being anointed as the King of Kings and the Lord of Lords. और हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में और जो है ज़करिया की किताब में देखते हैं कि मसाया जो है उसको अभिषेक किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य में देखते हैं हम कि वह राजाओं के राजा के रूप में जो है अभिषेक किया गया है। So the purpose of the tribulation period is to complete what God promised to Daniel for his people and his holy city, the 7 things to be completed at the end of Daniel 70 week, which is the
tribulation period end. और दानियल के इस 70 सप्ताह के अंत तक ये 7 बातें दानियल को बताई गई थी, ये बातों का पूरा होना अवश्य है। So now other information of the tribulation period from the book of Daniel. और दूसरी और जानकारियां दानियल नबी की किताब से हम जो है महाक्लेश के बारे में देख सकते हैं। Before we understand Revelation chapter 6, the opening of the seal, till Revelation chapter 19, we need to first understand what are the other information given in Daniel's prophecy. और जब हम दानियल के बारे में और उस 7 जो है मोहरों के बारे में देखते हैं, तब हम पाते हैं कि इनको देखने से पहले बहुत सारी बातें हैं जो हमें पहले देखनी होगी, ताकि हम उन्हें अध्ययन करें और उसके बाद हम इन बातों को समझ सकें। Daniel 9:27 gives us a few highlights of the 7 years tribulation period. और दानियल 9 उसके 27 में हम देखते हैं कुछ थोड़ी सी बातें जो ये बताती हैं 7 साल के महाक्लेश के बारे में। It says, then he, actually the Antichrist, shall confirm a covenant with many for 1 week. Can you see? 1 week is 7 years. But in the middle of the week, he shall bring an end to the sacrifice and offering. और 27 में जब हम पढ़ते तो वहाँ इस प्रकार से लिखा, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए, यानी 1 सप्ताह के लिए लिखा है, लोगों के बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और होम बलि को, अन्न बलि को बंद करेगा। Daniel has given us some information of what will happen in the 70th week, which is the Great Tribulation. और दानियल हमें कुछ जो है जानकारियां देता है कि इस 7 साल के महाक्लेश के अंतर्गत क्या क्या होने वाला है। Jesus say that the person of whom this verse speak of is the person that Jesus called the one who does abomination that causes desolation in Matthew 24:15. और ये जो बात के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ ये बात संबंधित है, वो इस प्रकार से कहते हैं कि वह वस्तु जो उजाड़ करा देती है कंगूरे के ऊपर जब दिखाई देने लग जाए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसकी 15 में यीशु मसीह इस बात को जो है अंदेशा देते हैं, इशारा करते इस बात की ओर। Apostle Paul calls him the lawless one in 2 Thessalonians chapter 2. पौलुस प्रेरित जो है इसको जो है बगैर व्यवस्था का व्यक्ति कह करके बुलाता है। And we will also see that he is called Antichrist in Revelation chapter 6 verse 1 and 2, or the beast coming out of the sea in Revelation 13:1. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 1 से लेकर के 2 तक हम जो है देखते हैं कि वो एक प्रकार का जो पशु है, पशु उस समुद्र में से निकल रहा है, इस और या मसीह ख्रिस्त विरोधी है। इन बातों को देखते हैं। Daniel 9:27 says the beast will make a covenant for 7 years, but in the middle of the week, 3.5 years into the tribulation, he will break the covenant, putting a stop to sacrifice. और दानियल 9:27 में हम देखते हैं कि वह बहुतों के साथ वाचा बांधेगा और जो है वाचा को अधभर में ही तोड़ देगा, यानी कि 3.5 साल जब गुजर जाएंगे तो फिर 3.5 साल में जो है वो वाचा को तोड़ देगा और बड़ा ही विनाशकारी समय वो होगा। How does he break the covenant? You can see it in 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first and the man of sin is revealed. That means Jesus, after Jesus come, then only Antichrist will be revealed. और इसका अर्थ यह है, जब हम 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और उसके 3 और 4 में देखते हैं कि कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए, वह दिन तब तक ना आएगा जब तक जो है वह अधर्म का पुरुष प्रकट ना हो ले, जिसके बारे में पहले से बखान किया गया है या जिसके बारे में पहले से लिखा हुआ है, और वो जो है अपने आप को ऊंचा ठहराएगा परमेश्वर से, अपने आप को परमेश्वर के मंदिर में बैठ करके ईश्वर बताने का प्रयत्न करेगा। इस तरीके की बातें जो हैं जब होने लग जाएंगी, तब आप समझ लीजिए कि ये वह दिन आ जाएगा। During the early church, you can see that many Christians died due to persecution. और जो प्रथम युग की कलीसिया थी उस समय सताव के द्वारा बहुत सारे मसीह लोग मार डाले गए।
So the Corinthian church, the Thessalonian church in 1 Thessalonians 4, verse 13 to 18, they were crying as though the loved one have died and they got no hope. और थिस्सलुनीके की किताब में जब हम देखते हैं कि वे जिनको सताया जा रहा था जब वे मर गए तो उनके परिजन जो बाद में रह गए वे इतने ज़्यादा रो रहे थे, परेशान थे कि जैसे अब उनके पास कोई आशा बाकी नहीं रह गई है, सब कुछ उनका लुट गया, सब कुछ उनके हाथ से चला गया उनके प्रियजनों के मरने के बाद। Even though today also there are many Christians who are persecuted and dead, we feel sad that they are being persecuted and dead. और आजकल के दिनों में भी हम देखते हैं कि सताव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और लोग जब सताव से होकर के गुजरते हैं या उनका कोई मित्र या परिजन जब चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके पास अब कुछ बाकी बचा नहीं है, क्या करें क्या ना करें, कुछ जो है समझ में नहीं आता, असमंजस की स्थिति आ जाती है। We can feel sad and cry, but we cannot cry as though we got no hope. और हम दुख महसूस कर सकते हैं, रो सकते हैं अपने सताए या मारे गए परिजनों के लिए, परंतु हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारे पास कोई आशा नहीं बाकी बची। What is our hope or our belief that as Jesus died and rose again, one day we will meet them when we die or we rapture and we will meet them in the cloud with Jesus Christ. तो हमारे लिए अब क्या आशा बची है या क्या हमारे लिए जो है आगे हमें कुछ दिखाई देता है। सो जैसे प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गए, ठीक उसी प्रकार से हम भी एक दिन मृतकों में से जीवित होंगे। ये हमारे पास एक बड़ी आशा है। That is our hope and it should be our faith. और ये हमारी आशा है और यही हमारा विश्वास भी होना चाहिए। So in the same way, the Thessalonian church, they thought many Christians have died and Jesus has already come and gone. और थिस्सलुनीके की जो कलीसिया थी वो इस प्रकार से विचारने लगी कि बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और शायद प्रभु यीशु मसीह आकर के चला गया। So Paul wrote to them and say, don't let anybody cheat you. तब पौलुस जो है इस बात को लिखते हुए उनको चिट्ठी में, पत्री में बताता है कि कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा ना देने पाए। He said, for that day the coming of Jesus will not come unless there will be a falling away which come first. और वो कहता है कि यीशु मसीह का जो आना है वो तब तक जो है सिद्ध नहीं होगा, परिपूर्ण नहीं होगा, जब तक जो है वो ख्रिस्त विरोधी अपने आप को प्रकट ना कर दे। And the man of sin should be revealed. और जो पाप का पुरुष है जब वो अपने आप को प्रकट कर देगा तब समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आकर के चला गया। Or this Antichrist will come to the temple and declare himself as God. और ये जो ख्रिस्त विरोधी है परमेश्वर के मंदिर में जाएगा जब वो यरूशलेम में है और वहां पर अपने आप को ईश्वर घोषित कर देगा। It has not taken place yet. अभी तक ये बात पूरी नहीं हुई है। Many are thinking that AD 70, the Roman Emperor Titus has went into the temple, he burned the temple and he wanted to declare himself as God. और बहुत सारे जो है इस प्रकार से सोचते हैं कि जो रोमन सम्राट था और वो जो है गया जाकर के उसने मंदिर को आग लगा दी कॉन्स्टेंटिन ने और जाकर के उसको भस्म कर दिया, तो वो जो है एंटी क्राइस्ट था, ऐसा करके मानने लगे थे उस समय। This incident has not taken place yet. परंतु अभी तक ये घटना पूरी नहीं हुई है, ये घटना अलग है। See, Revelation chapter 13 verse 4 to 6 explain that the beast is being worshipped, blasphemy against God and his name. 42 months is given to him. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 13:4 से लेकर के 6 तक हम देखते हैं कि वह जो पशु है प्रकट होगा और जो है उसके ऊपर निंदा के बहुत सारे नाम लिखे होंगे ईश्वर की, और 42 महीने तक काम करने का अधिकार उसको दिया जाएगा और लोग उसके सामने झुकेंगे और उसकी आराधना करेंगे। So again, some of the information in Daniel chapter 12 verse 12 which speaks about 1335 days. और दानियल की किताब के मुताबिक जो है उनको 1335 दिन का समय जो है वो दिया गया है। This we need to do some calculation, but if you are interested, we can discuss it after the class.
और इसके लिए हमें कुछ जो है गणना करनी पड़ेगी, कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा, तो उसको हम जो है बाद में क्लास के बाद में कर सकते हैं। Okay, now with that in mind, I'm going to explain to you how to understand the tribulation period as in the book of Revelation, chapter 6 to 19. और इन बातों को अपने ध्यान में, अपने मन में रखते हुए प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 के मुताबिक जो है हम किस प्रकार जो है महाक्लेश का बखान कर सकते हैं या देख सकते हैं। If you understand, if you want to understand the tribulation period, you have to listen carefully with this. और अगर आप महाक्लेश के समय अंतराल को समझना चाहते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान से देखना होगा। So number one, as I have told before, Daniel is sealed, Revelation is revealed. और पहली बात यह है कि जैसा मैंने आपको बताया, दानियल के अंदर बंद की गई, प्रकाशित वाक्य के अंदर खोल दी गई। So in Daniel, God is the one who has sealed. और परमेश्वर ही है जिसने उसको मोहर करके बंद किया। Revelation, Jesus who is God revealed it in Revelation chapter 1 verse 19. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है अपने आप को प्रकट करता है और इस मोहरों को खोल देता है। He told John to write what he has seen, that is Jesus Christ. और यूहन्ना से वो इस प्रकार से कहता है, लिख ले जो तूने देखा है, अर्थात जो कि यीशु मसीह है। Revelation chapter 1. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1। And then he told John what is now during John time, which is the church era, Revelation chapter 2 and 3. और उसके बाद हम देखते हैं वर्तमान काल कि जो बातें अब हो रही हैं, घट रही हैं। And what is hereafter, after the church era, what is going to happen is Revelation chapter 6 to 19, which is the 70th week of Daniel or the Great Tribulation. और कलीसिया के बाद क्या होने वाला है, यानी कि इसके बाद क्या होने वाला है। सो जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद जो है महाक्लेश का समय शुरू हो जाएगा, जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 के अंदर हमें देखने को मिलता है। So Revelation chapter 6 to 19 of what is going to happen in the end time event is for the Israelites after the church is taken up. और कलीसिया के उठाए जाने के बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 में जो लिखा हुआ है वो सारी घटना जो है इजराइलियों के बारे में दर्शाती, इजराइलियों के लिए है। You will see the word trump of God is actually the voice of God in Revelation chapter 1 verse 10 and also 4 verse 1. और प्रकाशित वाक्य 1:10-4:1 में जो है परमेश्वर की जो आवाज़ है वो तुरही के समान बताई गई है। So the 7 years of tribulation period is for God to fulfill the promise and the prophecy God made to the Israelites. और जो 7 साल का महाक्लेश है, परमेश्वर ने इजराइल के साथ जो भविष्यवाणी की है उसको पूरा करने के लिए है, और जो कुछ वायदे और वाचाएं, प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की हैं उन प्रतिज्ञाओं को भी पूरा करने का ये समय होगा। So the prophecy of Daniel chapter 9 verse 25 and Zechariah 14, which God prophesied for the Israelite, he is going to fulfill it in that 7 years period, which is Revelation chapter 6 to 19. और दानियल की किताब अध्याय 9 उसके 25 जकरिया 14 के मुताबिक जो है, जो बातें घटनी है, जो होनी है, इसको पूरा करने के लिए ये जो है समय होगा जिसे हम बोलते हैं दानियल की भविष्यवाणी। Okay, how to understand Revelation chapter 6 and 7? और किस तरीके से हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और 7 इसको हम समझ सकते हैं। Okay, I'm going to go on Revelation chapter 6 just for your thought now. और आपके विचार के लिए ही मैं अध्याय प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में से आपको बता रहा हूँ। Pastor, अब can you देखिए। read Revelation chapter 6 and Revelation chapter 7 about the 7 seals, maybe 1 to 4 the horses, and also chapter 7 regarding the 144,000? ओके, और हम जो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में से पढ़ेंगे और 1 से लेकर के 4 तक हम जो है थोड़ा सा देखेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने Maybe jump the 4 houses, jump the 4 horses. You tell them, okay, now we will say like that. Okay, Revelation chapter 6 verse 1 to 9, it's actually, 1 to 8 is the opening of the
4 seal. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 1 से लेकर के 9 तक जो है मोहरों का खोले जाने का हम देख सकते हैं। The first horse is the white horse. और जो पहला घोड़ा है वो सफेद घोड़ा है, Second horse is a red horse. और दूसरा घोड़ा जो है वो लाल घोड़ा है, The third horse is black horse. और तीसरा जो घोड़ा है वो काला घोड़ा है, The fourth horse is the pale horse. और जो चौथा घोड़ा है वो नारंगी घोड़ा है। And then the fifth seal is those who are martyred during, the martyr whose blood are falling in the altar. और चौथे हैं वो शहीद लोग हैं जिनका लहू जो है वो बहाया गया। The sixth seal is actually some environment or earthquake, sun became black. और जो छठी मोहर खोली जाती है वो वातावरण के ऊपर होती है कि जहाँ पर सूर्य जो है वो काला हो जाएगा या चंद्रमा काला हो जाएगा, या फिर कुछ घटनाएं जो है वातावरण में पर्यावरण में घटने लग जाएंगी। And then the sixth seal is the punishment that God is giving to the earth. और जो छठी मोहर खोली जाती है वो असल में पृथ्वी के ऊपर एक दंड है। Okay, then when you go to Revelation chapter 7, it is talking about the sealing of the 144,000 Israelites. और उसके बाद हम 7वीं आयत में जो है 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि 1,44,000 लोगों के ऊपर जो इजरायली हैं मोहर कर दी गई, 12 from each tribes. और 12 हज़ार जो है हर एक गोत्र से लिए गए। It is not talking about the church. ये कलीसिया के बारे में जिक्र नहीं कर रहा है। So then you can see on chapter 8 only you can see the opening of the seventh seal. और अध्याय 8 के अंदर आप 7वीं मोहर को खुलता हुआ देख पाएंगे, Which is actually a sounding of the 7 trumpets. और असल में ये जो है 7 तुरहियों को फूंकने का जो है समय हमें दिखाई देता है। I want you to focus on chapter 6, how Jesus opened seal number 1 to 6, and then on chapter 7, how 144,000 Jewish people are being sealed. और आप जो है इस बात को देखें कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह अध्याय 6 के अंदर एक एक करके 6 मोहरों को खोलते हैं। उसके बाद 7वें अध्याय के अंदर किस तरीके से परमेश्वर जो है वो 12 हज़ार हर एक गोत्र में से जो है क्या नाम है लेकर के उनके ऊपर मोहर लगा करके उनको बचाते हैं, सील करते हैं। The Old Testament from Genesis to Malachi is a history of the Jewish people. और पुराने नियम के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के मलाकी तक जो है जो इजरायली हैं उनका इतिहास हमें देखने को मिलता है। So when you ask them about chapter 6 about the seal and chapter 7 about the sealing of the unseal in chapter 6 and sealing of the Israelite people, they will understand very clearly because it is the same in Genesis chapter 1 and 2. और आप जब प्रकाशित वाक्य के साथ में देखते हैं तब जो है क्या नाम है किस तरीके से हर एक गोत्र में से 12 हज़ार लोगों लेकर के मोहर लगाई जाती है, इस बात को जिक्र जो है हम वहाँ पर देखते हैं। In Genesis chapter 1 it talks about first day to the 6th day and the 7th day God rested. और उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि पहले दिन, दूसरे, तीसरे दिन के बारे में बताया गया है, उसके बाद छठे दिन मनुष्य बनाया गया। In chapter 2 it talks about the fall of man. और अध्याय 2 के अंदर जो है जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि मनुष्य का पतन के बारे में, and not the fall of man, the creation of the man. मनुष्य की रचना के बारे में हम वहाँ पर देखते हैं अध्याय 2 में उत्पत्ति की पुस्तक में। How he created man from the dust and the woman. और किसने जो है किस तरीके से परमेश्वर जो है उस पुरुष को और स्त्री को जो है मिट्टी से बनाता है। So it is in the same way, if you want to understand Revelation chapter 6 about the horses and chapter 7, you must understand Genesis chapter 1 and chapter 2. और उसी प्रकार से जो है अध्याय 6 जो है वो घोड़ों के बारे में दर्शाता है, और अध्याय 7 जो है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और 2 का जिक्र वहाँ पर दोहरा करके किया गया है। It is the same format, the Torah and the Revelation.
और प्रकाशित वाक्य और तोरा अर्थात जो व्यवस्था की पुस्तक का लिखने का जो तरीका है वो कुछ एक जैसा ही सा है, मिलता जुलता So you can see Genesis chapter 1 begins with 6 days of creation and God rested on the seventh day. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की छठे दिन और उसके बाद सातवें दिन विश्राम किया। In Genesis chapter 2, God explained the core issue. That means he didn't talk about how he created the world, but he talked about what happened on the sixth day, how he created man, because that is the most important thing. और साथ में उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 के अंदर प्रभु परमेश्वर जो है मुख्य घटना की ओर इशारा करते हैं और वे ये बताते हैं कि किस तरीके से उसने इंसान को बनाया, उसकी रचना की और किस तरीके से उसने सारे कार्य को किया। तो मुख्य बात बता करके आगे को बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 को हम देखते हैं। So in the book of Revelation chapter 6 and 7, it is the same like Genesis chapter 1 and 2. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और 7 जो है वो की पुस्तक अध्याय 1 और 2 के मानिंद है। Jesus began by revealing or opening the sixth seal in chapter 6. और यीशु मसीह जो है वो शुरुआत करते हैं 6 मोहरे खोलने के साथ प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में। 1 horse, 2 horse, 3 horse, 4 horse, and then the altar, and then the cosmetic thing. और प्रभु यीशु मसीह जो है खोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घोड़ा निकलता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से वेदी के पास और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से पर्यावरण में बदलावट होना शुरू हो जाती है। But in chapter 7, he didn't talk about the horses or about the people who died in the saints who died in the altar. और 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ पर ये जिक्र नहीं किया गया है कि कितने लोग उस मरीज से मरे और किस तरीके से कार्य हुआ, लेकिन अलग से एक बात वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। He talked about the core issue, how he is going to redeem the Israelite people back. और 7वें अध्याय के अंदर मुख्य घटना को बताया गया है कि किस तरीके से वो इजराइल को पुनः छुड़ौती देंगे। That is why he sealed the 144,000 Israelite first. और इसीलिए पहले ही वो 1,44,000 इजरायलियों के ऊपर मोहर कर देते हैं। So this is how we need to understand the book of Revelation chapter 6 onwards. और इस तरीके से हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 से आगे हम समझ सकते हैं। The next one, how to interpret the tribulation period. और अगली बात है कि किस तरीके से We must बखान करें। We must understand that it's the end time plan of God for Israel, as we have seen before. और इस बात को हमें अच्छे तरीके से समझ लेना है कि इसको हमने पहले भी देखा कि ये परमेश्वर का इजराइल के लिए अंत समय की योजना है। We must also understand that it is the Old Testament of history which is continuing, which God promised the 70th week. It is the 70th week. और हमें ये भी समझ लेना है कि ये ऐतिहासिक घटना है जो पुराने नियम के अंदर वायदा किया गया था या जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, वही बात जो है अब यहाँ पर घट रही है। It is also a time when God created the heaven and the earth and gave the earth or the world to the Adam and Eve. और जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने सारी बातों की रचना करके आदम और हवा के हाथ में संसार को दे दिया। Adam and Eve, due to their sin, hand over all their rights to the Satan and given it to Satan the world. और आदम और हवा ने पाप करने की वजह से सारे अधिकार शैतान के हाथ में बेच दिए। What God gave to man has already been handed over to the devil. और जो कुछ परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था वो सब कुछ जो है दुष्ट के हाथ में उनके द्वारा सौंप दिया गया। This earth, which is the property of God in the beginning, he gave it to the man, and now the devil has taken over. और जो पृथ्वी है, पृथ्वी में की वस्तुएं हैं, सांसारिकता है, जो परमेश्वर ने आदम को दी थी, आदम ने अपराध के द्वारा शैतान को सौंप दी और शैतान ने जो है, दुष्ट ने जो है इसके ऊपर अधिकार को जमा लिया। How many of you know that this world belonged to the devil?
और आप में से कितने इस बात को जानते हैं कि संसार जो है इसका स्वामी दुष्ट है, शैतान है, But the earth belonged to God. लेकिन चाहते हैं कि जो पृथ्वी है या पृथ्वी में जो चीजें होती हैं वो सब परमेश्वर की हैं, परमेश्वर ही Devil करता है। is the king of the world. और शैतान जो है वो संसार का राजा है, Jesus is the king of the earth. लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो पृथ्वी पर राजा है। The earth is referring to everything which is inside this earth. The people, the creation, the sea, the heaven, all is earth. और इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना है, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी के अंदर जो है आकाश, आप पृथ्वी, तमाम वस्तुएं, तमाम चीज़ें, मनुष्य और तमाम जो कुछ है वो सब आ जाता है। Devil is the king of the world. Why do we call world? Because the people in the world belongs to the devil. और शैतान जो है वो संसार का राजा है। संसार हम क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग जो रहते हैं वो संसार कहलाते हैं। So the people who hold their property belongs to Satan. और लोगों की जो भी धन संपत्ति है वो असल में शैतान की है। That is why during the temptation of Jesus Christ in Matthew 4 and Luke 4, when the Satan took Jesus to the whole kingdom and showed, and he told Jesus, if you bow down, I will give you the kingdom. और हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में और खास करके जो है मरकुस की पुस्तक में कि So Jesus, जब शैतान आकर के परीक्षा करता है तब वहाँ पर जो है वो इस बात को प्रकट करता है कि ये संसार का राज्य उसको दिया गया है और जिसको वो देना चाहता है उसको वो देता है। Jesus never tells Satan, no, it all belongs to me. और ये शैतान से ये नहीं कहते हैं कि नहीं ये तो मेरा है I don't need to bow down to you, it belongs to me. और मुझे तुझे झुक करके प्रणाम करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो मेरा है। ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। हम देखते हैं Jesus knew this earth when God created, he gave it to the मसीह man, जानता था। and man has loosed it and Satan has taken it. और यीशु मसीह जानता था कि परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी लेकिन मनुष्य ने इसे अपने हाथ से खो दिया और शैतान के हाथ में आ चुकी है अभी। Now Revelation chapter 6 to 19, the tribulation period, Jesus is going to redeem back from Satan this earth. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से लेकर के 19 तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी को शैतान के हाथ से फिर से छुड़ाने पर हैं। We can call it like this earth is a title deed, a property which Jesus is going to take it back from Satan. और हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी, जो पृथ्वी है, ये एक प्रकार से डीड है, एक प्रकार से जो है नामांकन है जिसको बोलते हैं, ये किसके नाम है। तो उस डीड को जो है छुड़वाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कार्य करेंगे इस 6 से लेकर के 19 तक में। Then another interpretation of the Great Tribulation is that God's judgment upon unbelievers, because believers has already been taken up. He is going to judge the unbelievers, punish them. और विश्वासी तो उठाए जा चुके होंगे इस महाक्लेश से पहले, लेकिन ये जो समय होगा अविश्वासियों के लिए होगा। अविश्वासियों का न्याय इसी He is going to take revenge upon the people. और उन लोगों से प्रभु यीशु मसीह बदला लेने का, विद्रोह का काम करेंगे, बदला लेने का काम करेंगे। Who have persecuted the Christian and who have not accepted the gospel of Jesus Christ. जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को सताया, मारा, काटा या उन्हें तंग किया और जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, ये उनके लिए समस्या की घड़ी होगी। So how to understand the tribulation period as in the book of Revelation? और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जैसा लिखा है उसके अनुसार हम इस महाक्लेश को कैसे समझें। So the 70th week of Daniel is actually a 7 years period divided into 3.5. तो दानियल का जो 70वां सप्ताह है, असल में ये जो है 7 साल का महाक्लेश है जो 2 भागों में विभाजित किया गया है। So after Christ died on the cross, which is the church age, it will end at the
rapture and we are near to the rapture. और जब हम इसको देखते हैं महाक्लेश को, तो ये जो है उसके हिसाब से जो हमारा उठाए जाना है बादलों पर, वो बहुत नज़दीक है और हम बिल्कुल नज़दीक हैं उठाए जाने के। Then when the church is raptured, the tribulation period will begin. This is the light tribulation, and the other second half is the great tribulation, after the Antichrist sits in the temple and declare himself as God and asked to be worshipped. और ये जो समय है वो बहुत नज़दीक है। हम देखते हैं कि शैतान जो है वो पृथ्वी के ऊपर आएगा और उसके बाद जो अपने आप को ईश्वर करके घोषित कर देगा, और जो कलीसिया है वो उठा ली जाएगी और शैतान जो है मंदिर के अंदर अपने आप को आराधना के लिए दे देगा। इस तरह की बातें जब होने लग जाएंगी हम देखते हैं। So at the end of it, at the 7 years period, then Jesus will come down with his angels and also the saints. और प्रभु यीशु मसीह 7 साल के इस महाक्लेश के बाद अपने तो और स्वर्गदूतों और कलीसिया के साथ नीचे उतरेंगे। And then Jesus ruled this earth for 1,000 years. Then comes the eternity. और तब प्रभु यीशु मसीह इसी पृथ्वी पर 1000 साल तक के लिए रहेंगे और उसके बाद जो 1000 साल खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाने के बाद अनंत काल का समय शुरू हो जाएगा फिर से। Okay, I will stop here. I want to explain about the chronological event or about the Antichrist, the horses in the next class. Immediately I will start with Revelation chapter 6 verse 1 to the last part of chapter 6. और यहीं पर जो है मैं समाप्त करना, Because if I start this, I can't finish है it. उसके आखिरी भाग को जो है ऐतिहासिक तौर पर चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, या क्रमानुसार जो चीज़ें हो रही हैं उनको मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं अब शुरू कर दूंगा तो फिर मैं इसे समाप्त This is the actually today I have given यही you. समाप्त करूंगा। Today I have given you the introduction of how to understand the whole of Revelation chapter 6 to 19, which is very easy. और आज मैंने आपको एक प्रकार से परिचय दे दिया है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 से लेकर के 19 तक हम इसे कैसे समझे, जो कि बहुत आसान है। Because it is for the Israelite, and if you understand the Old Testament well, you can understand everything very easy. क्योंकि ये इजरायलियों के लिए है। अगर आप पुराने नियम को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से इस So I will give you the slide till before, and then we will end up here. Pastor Deepak, I hand over to you. और हम जो है शुरू से लेकर के अंत तक की जो स्लाइड्स है वो आपको दे देंगे, और इसके बाद हम लोग जो है प्रार्थना करेंगे और यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके बाद यदि किसी पास कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। जो छोड़ना चाहते हैं वे छोड़ करके जा सकते हैं, और जो रुके रहना चाहते हैं वे रुके रह सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। आइए हम इस घड़ी दुआ में जाएंगे, दुआ करेंगे, परमेश्वर के समक्ष चलेंगे। प्रभु राजाओं के राजा, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपने अब तक संभाला, अपने लोगों में छिपाया, तमाम दुष्ट की देखी अंधे की ताकतों से बचाया। खास करके प्रभु अपने वचन, आपकी बातों को प्रभु समझने के लिए सहायता और मदद की, और प्रकाश से लेकर के 19 तक प्रभु इन बातों को जानने के लिए प्रभु आप ही हमें बुद्धि और बल देते हैं। अब धन्यवाद देते हैं आपके दास के ऊपर आपने बातों को प्रकट किया, ताकि ये प्रभु सीखा और समझा सकें, जिससे प्रभु हम भी सीखें और अपने अपनी कलीसियाओं में लागू करने पाएं। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, विशेषकर पास्टर पॉल को आशीष और बरकत दे, यही विनती है यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. आमीन।